So I am here, so waiting for everyone to join. As usual, my habit, I am very punctual. So I think 1 minute before my time I'm here, so that uh, I also make myself comfortable and so everybody. Yes, I hope I am visible and audible. If anybody has joined, please comment if I am audible and visible properly. Vanika, yes, Vanika is there. Great, Vanika, nice to see you here. Waiting for more people to join so that we can start our session. I am also excited to speak on one of my favorite subject, that marketing. So waiting for more and more people to join so that I can start with my live session, which is on marketing tips and how to grow your network. Yes, I feel that there are more people coming up. I would like them to please comment your queries if you have any related to this topic, so that after some time I can take up those queries. Yes, Tanvi Chandni is here. Thank you, Tanvi, for joining live stream. Sudarshan ji, thank you for coming to watch this live session. Vibha, thank you so much. Vandana Suri, thank you, Vandana ji. You are a great inspiration for everyone. So I'm lucky to have you here. And I am seriously waiting for some more people to come. I really want that more and more people take benefit of this session. And yes, Timsy is also here. I can see Moin One is also there. Hello, Timsy. I think that today's topic is for everyone, in whichever field you are, whatever you are doing, whether you are doing business or whether you are providing any kind of a services, whether you are a homegrown entrepreneurs. This session is for everyone. Yes, Timsy, am I all right? Am I visible? Am I visible? Or there is some problem in my visibility? Okay. Any one of you can tell me that I am visible to all? Okay. Thank you, Vanna ji. So coming to this today's topic, which is some marketing tips and also how to grow your network. Today I have decided to come live. Hello Niti, thank you so much for coming live and watching me. I am live for today for the community of entrepreneurs. On the Facebook there are various groups, there are various platforms, and all the women are doing a wonderful work. Either they are service provider, or if they are selling any kind of a product. They all are doing a wonderful work. So I am here for them. First of all, I salute all the women community, that in spite of this COVID situation, not only women, I think everybody, in spite of this situation, we have not lost the zeal. We all are so enthusiastic about our work.
we are so enthusiastic about everything we are doing. I think in spite of this crisis, we have not stopped working. Rather, we are working much more than before, isn't it? So we have not lost that zeal. That is something which is very, very important. We have not become lazy, we have not become lethargic, we have not lost the hold on our work. In fact, each and every one is devising new ways. They are innovating, like how to sell their products, or how to create more and more visibility for their services. So I think this is something which makes me very, very happy, and makes me say this, that I salute all the business community who are doing wonderfully well. Now, coming back to this topic of today, that how to grow your network, how to grow your professional network. That is a very, very simple thing, I think. We have made it very complex, but it is very, very simple. If there are so many platforms all over, in every community, in everywhere, in every city, where you can create the visibility of your product or services. It can be a Facebook group, it can be a Instagram, it can be a LinkedIn, it can be your own website, your e-commerce site. There are the choice is unlimited, but in spite of all these platforms, the most important thing, which is very important to grow your network, is your own self, your own product, your own services which you are providing. It is very important for all of us to be an expert in our field, whatever we are doing, whether you are selling any products, whether you are giving any kind of a coaching, whether you are providing any kind of a services. It is very, very important that we should be able to answer each and every point asked by our customer, because in this whole scenario, what is most important is our customers. Our business, our services will not run if our customers are not coming to us, and we have to see everything from the customer point of view. Today, in this situation, when we are locked up in our homes, and we do not have access to so many things physically, so we are devising ways and means to reach to our customers. So it is very, very important that we need to understand our customer first of all, whenever we are doing something. Thank you, Nirmal ji, for coming live and watching my show. It is very, very important that we understand the need of the customer, and accordingly we plan our strategies. Because if the one customer is satisfied, if your one customer is happy with you, that customer will act like your marketing manager, that will blow the trumpet all around, and then you will become indispensable for that customer. And when you become indispensable for any customer, that customer will go everywhere, and they say he will paint the town red. He will talk about you and your services or your product everywhere, and in a way, without paying any salary, you have created your marketing managers around. Because I personally believe that in any profession, if you have satisfied one customer, and every customer has minimum of 10 or 12 people which are very close to that person, so he or she will not leave any opportunity. Especially women, wherever they meet, they like to talk about from where they have purchased this thing, how is the quality, who is the provider. So I think your word of mouth will bring back to you as many customers as many you want. So when you give an ad in a newspaper or a social media or anywhere, that is beating your own trumpet. आप अपनी publicity खुद कर रहे हो. But when the customers speak about you,
then your product speak, then your service speak. So it is very important for all of us that we should concentrate first of all on our product. Many a times it's a very wrong notion in people's mind that if I join 10-20 platforms my network will grow. I'm very sorry to say that is a misconception only. You can join as many platform as many you want, but your customer will grow only if your product is good, if your communication is good, if your knowledge about your product is good, if the visibility of your product is good, if you are reaching to a customer, every customer personally, and you making a connection with that customer. This is very, very important. Whenever people come to me, because I am running a online platform where mostly entrepreneurs are there, they all are selling their products, and जब कोई भी नया member मेरे साथ जुड़ता है या She Connects के साथ जुड़ता है, so they always have one query कि ma'am, if we will join your platform, how many customer I will get? So I always tell them one thing: I'm very sorry, you can join my platform, but there is no commitment from my end that by joining She Connect you will have n number of a customer from tomorrow, because that is not possible. I can provide only the platform. Generating customer is totally and totally your strategy, your product, your visibility, your ethics, your communication, and lot many more things. Ethics is one very important thing. I have seen people are doing business. Many complaints also comes to me when I'm running this platform She Connects, that people are trying to steal our pictures, they are trying to sell it at less rates, so all these things, all these practices are very unethical. If you are not doing your business with ethics, you will not grow. You should have some ethics when you are selling your products or selling your services. The thorough knowledge about everything only will take you anywhere, but just copy pasting will make you reach nowhere. So it is very, very important that you work upon the quality of the product, you work on your word of mouth, you also work upon your connection with the customer. It is very important, that if you make one-to-one connection with people, with your customers, or with your network, that network will surely and surely reach out to you. If you are honest in your commitment, I have seen many a times there are fights when some vendor sells some products. The products reaches to the customer and the customer is complaining it is not good. But the vendor is saying that because that vendor has taken the money and he doesn't want to return that refund. So in that उस कोशिश में वो कोशिश करता है कि मैं अपने कस्टमर को किसी भी तरह से सेटिस्फाई कर लूँ. I think that will not work. If your product is not good, it is very, very important that you apologize. You say, okay, I will do the needful. You send back me the product. I will see to it how I can help you. These kind of communication will convert a negative customer into a positive one. Otherwise, even because I have seen people are very happy, and they are very happy when their customers are happy. And when some unhappy customer comes to them and complain to them, they will quote 10-20 examples of those happy customer. But I'm very sorry to say, you need to understand, for that customer, your 10, 12, 20 happy customers are not at all important. For him or her, what you have sent to him or her, that will speaks volume about the quality of your services or your product. The references of other people are satisfied, or nobody has complained till date, you are trying to make a fuss over this. These kinds of communication from your end will
not only make that customer unhappy, but he will also spread a negative word of mouth. So it is very, very important that you create a positive aura around that negative customer, but by accepting your mistake. बहुत बार ये होता है ऑनलाइन सेलिंग के अंदर. आई हैव सीन. हेलो ईशा, थैंक यू सो मच. बहुत बार ये होता है ऑनलाइन सेलिंग के अंदर कि हम लोग रीसेलर्स होते हैं. वी आर नॉट डायरेक्टली मेकिंग दैट प्रोडक्ट्स. सो उस केस में जब कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचता है, दैट टाइम you do not know that what the vendor has delivered to that customer. This I am talking about the online seller, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं. सो जब कस्टमर को वो चीज़ पहुंचती है, वो आपको कंप्लेन करता है, और आप क्योंकि एक मिडिल मैन हो, आप रीसेलर हो, आप अपनी इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, और आप बोलते हो कि मुझे नहीं मालूम, ये तो मेरे वेंडर ने ऐसा भेजा है. यू कैन नॉट अटर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. दिस इज टोटली रॉन्ग. फॉर दैट कस्टमर यू आर द वेंडर, यू आर द सप्लायर. इट डजेंट मैटर टू हिम कि आप वो चीज़ कहाँ से लेके आके उसको भेज रहे हो. उसके लिए सिर्फ आप और आप इम्पॉर्टेंट हो. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ग्रोइंग योर नेटवर्क. इस चीज़ को आप याद रखो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर टू बी टेकन इनटू स्ट्राइड. यस, in fact रश्मि जी, आई फील द नेगेटिव कस्टमर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, बिकॉज वो कहते हैं ना, जो हमारी निंदा करता है या जो हमारे प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकालता है, वो हमारे को एक चैलेंज देता है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें. इजंट इट? और जो आपको सिर्फ प्रेज करता है या आपको सिर्फ ये बोलता है कि येस इट्स ए वेरी गुड, दैट ब्लॉक ऑल द वेज कि आपका प्रोडक्ट तो सुप्रीम है और आपकी सर्विसेज सुप्रीम है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नेगेटिव कस्टमर्स को बल्कि ज़्यादा ध्यान दो, उनको आप हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. आई एम रनिंग ए शी कनेक्ट प्लेटफॉर्म. मेरे यहाँ भी मेंबर्स जो बनती हैं वो मेरे कस्टमर्स हैं. कहीं ना कहीं उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी डिससेटिस्फेक्शन होता है, इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई देम टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होते हैं या किसी भी तरह से मुझे लगता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये उनका कुछ नेचर में प्रॉब्लम है कि वो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम फस, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. नॉट ओनली विद द शी कनेक्ट, विद anybody. there are some fussy customers also. उनका एक आदत भी होती है, कुछ कस्टमर इस तरह के फंसी होते हैं. बट मैं आपको कोई अगेन कोई, जैसे मैंने लास्ट टाइम पेरेंटिंग का सेशन भी किया था, तो आई टोल्ड एवरीबडी कि दैट देर इज नो फिक्स फार्मूला दैट इफ यू डू दिस विल हैपन. You have to devise ways and means to satisfy a customer with your talks, with your communication, with your innovation, or with anything which you feel right at that time, not forgetting the ethics of your profession. Do not try to pass the things कि चलो यही ऐसी है, इनकी तो बोलने की आदत है या ऐसे ही बोल रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. कस्टमर कभी कभी डिससेटिस्फाइड होते हैं और वो जेन्युइनली भी होते हैं. सो अगर आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर. मैं बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. रेनू, थैंक यू सो मच. रश्मि जी, सुदर्शन जी, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन भी अगर कोई हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आप अपने क्वेश्चन भी पोस्ट करते रहिए कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आई एम देयर, आई विल गिव यू एन आंसर. सेकेंड थिंग्स है आपका कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से आपके कस्टमर नहीं बढ़ते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने उन सब चीज़ों पे काम करो जो आपकी हैं, जिस प्रोफेशन में आप हो. और कोई भी प्लेटफॉर्म के जुड़ने के बाद उसकी जितनी मीट्स होती हैं, उनके जितने इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड करने से भी आपका नेटवर्क बढ़ता है.
बहुत बार मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि हमने नेटवर्क ज्वाइन कर लिया या प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया और उसके बाद दे डू नॉट बॉदर, उनकी विजिबिलिटी वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होती है या म्यूट मोड पे होती है। अगर आप, या कई लोगों को ये लगता है कि हमने प्रोडक्ट्स तो अपने डाले थे लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है लोगों के दिलों में। यू नीड टू बी constant, continuous in your efforts. In one time you putting your products and maybe those people have not seen your products that time. Colgate जो एक टूथपेस्ट है, आज पूरी दुनिया को पता है एक टूथपेस्ट है, तो भी इसका ऐड आता है। लिरिल एक सोप है, सबको पता है। मैगी नूडल्स सबको घर घर में पता है, फिर भी उसका ऐड आता है। क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड रिस्पॉन्स। अगर आप कस्टमर के माइंड में टॉप पे रहोगे तभी आपके नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपने 1 मंथ 2 मंथ या 1 साल अपना एडवर्टीजमेंट किया या विजिबिलिटी बनाई किसी भी प्लेटफॉर्म में, उस दौरान वो सारे लोग वहाँ पे थे जिनके लिए आपका प्रोडक्ट रेलिवेंट था। Yes, Isha, negative customer makes us find the loopholes in our products or services. Yes, that is also true. Some customers are irate, but for that ethics of our profession is highly virtuous. Very good. I agree to you. कि बहुत सारे ये जो मैंने चीज़ें कही, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं, इट इज़ वेरी गुड। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी विजिबिलिटी कैसे बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 100 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म उन्होंने ज्वाइन कर रखे होते हैं, सब प्लेटफॉर्म्स में जाके वो पोस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद आज पोस्ट किया, उसके बाद 1 मंथ के बाद वो पोस्ट करते हैं, तो वो भी गलत है। आप मार्केटिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विजिबिलिटी। आप जितनी विजिबिलिटी अपनी बढ़ाओगे, जितना एग्रेशन होना चाहिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर। आज ये कल वो नए नए मेथड्स आपको अपनाने चाहिए अपने प्रोडक्ट को विजिबल बनाने के लिए। आज आपने कोई स्कीम निकाली है, कल आपने कोई कूपन कोड्स निकाल दिया, फिर आपने उसके बाद कोई फ्री सर्विसेज दे दी। सो बहुत सारे मेथड्स हैं जिस तरह से, जिसके ज़रिए आप अपनी विजिबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। नॉट ओनली बाय जस्ट पोस्टिंग योर प्रोडक्ट्स, बट उन प्रोडक्ट के साथ भी आप बहुत इनोवेटिवली काम कर सकते हैं। आप एवरी डे कोई ऑफर निकाल सकते हैं, आप एवरी डे कुछ उसके साथ फ्री दे सकते हैं। आपका प्रोडक्ट जब तक किसी ने टेस्ट नहीं किया या उसको सर्विस को टेस्ट नहीं किया, आपकी क्वालिटी उस कस्टमर तक नहीं पहुंची है। और उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अपनी लिस्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यही मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर कैन, कि आप अपनी लिस्ट ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें जो मैंने अभी बताई आपको सारी। अपने प्रोडक्ट पे काम करना, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना, एथिक्स को टॉप मोस्ट रखना, ये सब चीज़ें हैं। विजिबिलिटी इज जनरली इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। रश्मि जी बोल रही हैं विजिबिलिटी इज जनरली इग्नोर्ड। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी विजिबिलिटी बनाते हैं लेकिन हम अपने काम में इतने वो रहते हैं। आई थिंक रश्मि जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। Presently, I am involved into, I think, more than 5 to 6 verticals. My book is coming, my e-commerce is coming, my She Connect is there, my shopping bag is there, and then there are other things also. Then plus my personal life. But I always plan things on the paper and do. I always divide my work into hours. Like from this hour to this hour, I will do this. From morning till evening, every day morning, I plan a paper and write everything. तो अगर आप अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे, अगर अपने आप घंटों को प्लानिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने काम में मसरूफ़ होते हुए भी आप उस विजिबिलिटी जो आपने क्रिएट की है उसका बेनिफिट पूरा उठा सकेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आजकल जो क्राइसिस इस समय हो रहे हैं उसके दौरान हमारे पास बहुत सारा एक्सेस काम है, वो भी काम है जो हमारे पास पहले नहीं था।
पहले हम सिर्फ प्रोफेशनली फोकस थे, अब हम फैमिली वाइज पर्सनली भी फोकस्ड हैं। तो इसके रहते हुए भी आई थिंक 24 आवर्स के अंदर अगर आप 6, 7 या 8 घंटे की नींद भी निकाल दो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो आप अपने अगर टाइम को प्लान नहीं करते ना तो यू मेक ए कंप्लीट मेस ऑफ इट। I think since the time I was in job, I have developed a habit. One is to be punctual, and second is to plan in a diary. See, I can show you. I always keep my diary ready, where I write and plan every day कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मेरा एजेंडा क्या है, आज मेरे घंटे को किस तरह से मुझे डिवाइड करना है, यू नो। सो ये मेरे हमेशा टेबल पे रहती है एंड आई ऑलवेज डू इट। मुझे सोने से पहले आदत है अगला दिन प्लान करके रखने की। नॉट इवन दिस, इवन होम फ्रंट के ऊपर अगर मुझे सपोज कुक को मेन्यू भी देना है तो आई विल प्लान एंड गिव इट टू हिम सो दैट आई कैन सिट रिलैक्स्ड फॉर माई वर्क। दिस इज वेरी, आप अगर इस चीज़ को रश्मि जी प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल डेफिनेटली से कि आई हैव रियली, इट हैज़ रियली हेल्प्ड यू। तो ज़रूर कीजिएगा। आप अपना मल्टीटास्कर, अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को भी देखना, आप प्रेजेंट कस्टमर को तो देख ही रहे हो, लेकिन वो जो नए कस्टमर के लिए जो आप इतनी जद्दोजहद करके जनरेट कर रहे हो वो आपसे इग्नोर हो रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है मैनेज प्रॉपरली किया हुआ। सो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना आपका काम होता है। आप डेली सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर और 1 आवर एज पर योर शेड्यूल रखिए कि आज मैंने इतने टाइम तो इतने से इतने, और जब लिखा होता है ना हमारी डायरी के अंदर तो वो टस से मस नहीं होता है। यू नो, आई कीप ऑन सीइंग दैट पेपर अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द डे कि मैंने क्या क्या लिखा है आज, यू नो, सो दैट मुझे कुछ भूले नहीं, यू नो। सो ये मैंने प्रैक्टिस जो किया है, अगर आप भी करेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कितना हेल्प करता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। आज आप जब भी अपनी मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय क्राइसिस चल रहे हैं, आप वेबिनार कीजिए, आप डिजिटल मीटिंग अरेंज कीजिए, आप नए नए आइडिया अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के हिसाब से, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सेलर हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप नई नई चीज़ें लेके आ सकते हैं और उसको प्लान आउट कर सकते हैं। इट डोंट फील कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इफ़ यू ट्राई एंड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ डेडिकेशन इन योर माइंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जैसे कुछ लोग बहुत रात देर तक काम करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। कुछ लोग मॉर्निंग जल्दी उठ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो वट एवर सूट्स यू, बट डिवाइड योर टाइम एंड अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को करो। अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आजकल कंपटीशन है बहुत, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ आगे वही निकलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप कंपटीशन की रेस में भागने के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बहुत चीज़ जो मुझे ध्यान में अभी आ रही है, बहुत कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कंप्लेन किया था कि मैं लोगों के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैम हम तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं लेकिन कोई भी हमारे प्रोडक्ट को के ऊपर या तो रिप्लाई नहीं करता, या हमारे किसी लिंक को लाइक नहीं करता, या हमारे प्रोडक्ट के लिए कोई हमसे रिवर्ट नहीं करता। तो मेरा आंसर उनके साथ, या ऐसे बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए यही है कि आप अपनी कोशिश बरकरार रखिए, आप अपना काम करते रहिए। आप आज नहीं तो कल हो सकता है कि जिन लोगों से आप अभी जुड़े हो उनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट, यू नो। देयर इज़ वन क्वेश्चन, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में डील करती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं किस किस से डील कर सकती हूँ। ओह, मैं आपके लिए तो बहुत ओपन मार्केट है। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में आज हर एक को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। इवन ऑल द चिल्ड्रन, ऑल हाउसवाइफ, आज हम लोग सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दे आर बीइंग रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आपके लिए तो इस समय
पीक का टाइम है, यू कैन अप्रोच एनीबडी, यू नो, बट प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट इज यू नो सर्व द पर्पस। वो जिस चीज़ के लिए आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए देखो, हम कुछ भी कर रहे हैं, अप्रोच तो हमें कस्टमर्स को ही करना है, और वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या वो बच्चे हो सकती हैं, या मेल हो सकती हैं, या फीमेल हो सकती हैं, या ओल्ड हो सकती हैं। नो दैट यू हैव टू डिसाइड कि मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी में किस एज ग्रुप के लोग आते हैं। पहले आप ये शॉर्ट लिस्ट कीजिए, और उस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप ढूंढिए कि ऐसे लोगों को मैं कहाँ अप्रोच कर सकती हूँ। आई विल टेल यू, आई वॉज इन ए स्कूल एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शी कनेक्ट स्टार्ट करने से पहले या मेरी कंपनी स्टार्ट करने से पहले आई वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर टू ए स्कूल। और मार्केटिंग मैनेजर में मैं ओवरनाइट नहीं बनी थी, आई वॉज इन सम अदर पोजिशन। So I was called one day and I was given the responsibility of handling the marketing of the school. So मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक, हैरान करने वाली बात थी कि एक स्कूल के अंदर मार्केटिंग कैसे होती है, you know. But what I did was I was very reluctant to accept that offer, you know. तो मैं बहुत रिलक्टेंट थी। आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट 200% डेफिनेटली, अगर 200% है तो sky is the limit. Go and approach people, join platform, talk to people, give demo of your product, talk on the social media, go live talks, you know. Sky is the limit. और इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीज़ें और जानना चाहते हैं, you can definitely get in touch with me. तो मैं आपको बता रही थी कि I was not at all a marketing person, so I was very reluctantly I accepted that offer. And you know, स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आप मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हो, दैट वॉज अ क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड। क्योंकि प्ले स्कूल है तो वहाँ बच्चों को लाने के लिए मुझे बच्चों को टारगेट नहीं करना था, मुझे पेरेंट को टारगेट करना था। तो सबसे पहले मुझे ये सोचा कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। तो मुझे समझ में आया क्योंकि पेरेंट्स टारगेट ऑडियंस हैं, तो मुझे ऐसा कौन सी चीज़ करनी है जिससे वो पेरेंट्स आएँ और उनके साथ वो बच्चे भी आए जो उस चीज़ को, उस स्कूल को देखें। सो यू वोंट बिलीव, आई इनोवेटिव मार्केटिंग इन प्री स्कूल। एंड मैंने घर आके सोचा कि क्या किया जाए, और मैंने सोचा कि उन पेरेंट्स को बुलाने के लिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी है जहाँ उनके छोटे बच्चे भी साथ में आए और वो पेरेंट्स भी उनके साथ में आए। पेरेंट्स तो स्कूल देखें और बच्चे उस फन में अपने आप को एंजॉय करें और वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो that was the way back in 1999 that I planned the first baby show of Delhi for that particular school. And after that it is a history. After that every school was organizing, and I am very honest about this thing, that idea was totally and totally was my trademark, जो मैंने इसको कॉपीराइट किया, जो मैंने निकाला ये आइडिया। और उसके बाद one after the another I have done so many shows, not only in that school, in other school. So what I am trying to tell you is that आपको मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को पहले देखना होगा, और उस कस्टमर को टारगेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो सोचना होगा, और आपको कुछ ऐसा करना होगा जो हर कोई नहीं कर रहा है। You should be very unique in your concept. बट प्रोडक्ट का कॉस्ट 3900 की है, तो लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम बता देती हैं, बट इसमें अर्निंग भी है। मैं खुद 15 दिन में 18,000 अर्न किया है, बट फिर भी नो रिस्पॉन्स। देखिए, दैट इज़ वेरी ट्रू कैन कि रिस्पॉन्स आपको 100% किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है। यू नो, अगर आप 25,000 लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो उनमें से 2500 लोग तो आपकी बात सुनते हैं और 250 लोग ही उसमें से आपके साथ जुड़ते हैं, और उसमें से 25 लोग ही आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये 10% फार्मूला आप याद रखिए। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ पीपल डू नॉट रिवर्ट टू यू। यू नो, आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आज आपने सपोज ए एक्सरसाइज की अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कल बी कीजिए, फिर सी कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाइए। यू नो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट सो इजीली।
आज आपने सोचा कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, नो डाउट अबाउट इट, आज की डेट में कॉस्ट को बेयर करना इज डिफिकल्ट, यू नो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसके फायदे उस कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा बताएंगे तो आप उस कस्टमर को जरूर हासिल कर पाएंगे। आपको देखो, मैं आपको एक मार्केटिंग का एक थंब रूल बताती हूँ, गोल्डन रूल बताती हूँ। आप जब भी किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं ना, आपको इस तरह से अप्रोच नहीं करना कि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि आप उसका फायदा सोच रहे हैं, आप उसके भले की बात कर रहे हैं, आप उसको 15, 20, 25 जितने फायदे आप गिनवा सकती हैं वो गिनवाइए। आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपना प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरत बना के दिखाना है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर उसको ज़रूरत समझ में आ गई अपने लिए उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने कहा आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, अगर उसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत अपने लिए समझ में आ गई, फिर वो कॉस्ट नहीं देखेगा, यू नो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आ रहा। आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका प्रोडक्ट जिस सेगमेंट के लिए बना है, उस सेगमेंट को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपने दिमाग में रखनी है और आपको उसके वो सारे फ़ायदे उसको बताने हैं। व्हेन आप कस्टमर की नीड बन जाओगे तो आपका कस्टमर आपकी तरफ खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेलिंग दिखाओगे तो नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट्स को नीड दिखाई कि आप स्कूल में आओ, हम बच्चों के लिए बेबी शो कर रहे हैं। लेकिन वो बेबी शो पेरेंट्स के लिए तो नहीं था, वो इसलिए था ताकि पेरेंट्स उसमें आके पार्टिसिपेट करें, बच्चे इसमें एंजॉय करें। और क्योंकि स्कूल बहुत खूबसूरत था तो उस स्कूल को देखने के बाद उनको बिल्कुल इस चीज़ से पूरी तसल्ली हो जाए कि यहाँ मेरा बच्चा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। हमें हमेशा अगर ये पेन किसी को बेचना है तो ज़रूरी नहीं हम इस पेन के बारे में बोलते रहे कि बहुत सस्ता है, बाकियों से सस्ता है, इसको ले लो। नो, आप इसकी क्वालिटीज़ बतानी है इस पेन की। इस पेन को आप क्यों खरीदें, कितने का खरीदें, इसे बात की बात। तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को समझिए, उसकी बात को समझिए, उसका ज़रूरत समझिए एंड देन अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, एवरी कस्टमर ऑन दिस अर्थ, फॉर एनी सर्विसेज, फॉर एनी प्रोडक्ट। सो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा। एनीबडी हैज़ एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है सो दे कैन डेफिनेटली आस्क यू इन द मीन टाइम। जो अब क्वेश्चन आते हैं तब तक मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द शी कनेक्ट का ई-कॉमर्स, शी कनेक्ट ई शॉप आने वाला है। और वो ई शॉप मैंने इसीलिए आई एम ब्रिंगिंग बिकॉज आई रियली वॉन्ट दैट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज कोविड की स्थिति में अपने प्रोडक्ट्स को लोगों से मिलके नहीं सेल कर पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको बहुत रीजनेबली मिल जाए जिस पे जाके वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमारे जो ई कॉमर्स की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपको सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स और अपना बैंक डिटेल्स देना है और कुछ भी नहीं देना है। आपकी शिपिंग हम देख रहे हैं, आपका लॉजिस्टिक हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट का अपलोडिंग हम देख रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ के भी इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं विदाउट आप अपनी इतनी मेहनत किए, क्योंकि उसका जो प्रमोशन है, आप प्रोडक्ट डालेंगे लेकिन प्रमोशन आपकी हम करेंगे। सो प्लीज़ मेक इट पॉइंट, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ गेट इन टच विद मी एंड आप पर्सनली आके इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे मैसेंजर के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू, एंड देन आप बात कर सकते हैं और हम आपके प्रोडक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं। यस सुदर्शन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। टेक केयर ऑफ योर नेगेटिव कस्टमर एंड बी मोर एंड मोर विजिबल। दीज 2 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। एक बार पोस्ट डालने से मत खिन्न हो जाइए, मत इरिटेट हो जाइए। डोंट ट्राई टू अपने कस्टमर को कि ये बेकार हैं, कोई जुड़ता नहीं है। नो,
This is totally and totally your responsibility, your product, and you need to devise various ways and need not to leave any stone unturned to sell your product. It will speak in volumes if your product is good. That is my guarantee to you. It takes time. आपका टाइम 1 महीने का लग सकता है, आपको 5 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करते रहिए. कोशिश अगर आपने छोड़ दी तो उस समय फिर ख़त्म हो जाता है सब कुछ. आपको जितनी बातें मैंने आपको बताई है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. ये कोई जादू का कोई खेल नहीं है कि आज आपने ये किया और ये कस्टमर आया और लिया और हो गया. कस्टमर को देने के बाद उसके रिव्यूज़ इकट्ठे करना, उन रिव्यूज़ को अपने दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचाना, अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया को अपडेटेड रखना, कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ता है. और यही चीज़ें आप प्रोडक्ट डाल के आप खुद ही भूल जाते हो कि हमने कहीं डाले थे. तो ये सब चीज़ें हैं कि पहले तो आप अलर्ट रहिए. तो अपने आपको एक भी कस्टमर अप्रोच करता है तो उसे छोड़िए मत. उसे, वो भले ही आपका कस्टमर बने ना बने, लेकिन उसको सेटिस्फाइड जरूर कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आना, कुछ नया ऐड करना, कुछ नए तरीके से उसकी पैकिंग को चेंज करना. या आपके कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके इमीडिएट लोगों के अपना, आप दूसरा नेटवर्क में तो जाते हैं, दूर के नेटवर्क में, लेकिन आपके अपने फ्रेंड सर्कल में आपका अपना नेटवर्क भी इतना होता है, पहले उस नेटवर्क को भी कैच कीजिए. ये नहीं होता कि मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया या मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया तो कस्टमर अपने आप आपको अप्रोच कर लेंगे. नो, आपको रेगुलरली उन कस्टमर के टच में भी रहो जो आपके इमीडिएट हैं. आप जहाँ रहते हो वहाँ पे डेमो क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे एग्जीबिशंस लगा सकते हो, वहाँ पे अपने घर पे एग्जीबिशन लगा सकते हो. कस्टमर को ये देखो, जितनी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ऐसे ही करते हैं. दे क्रिएट ए स्मॉल ग्रुप्स. अगर आपने देखा होगा, चाहे वो एमवे है, चाहे वो मोदी केयर है, चाहे वो टपरवेयर है, चाहे वो ओरिफ्लेम है, दे डू नॉट लीव अ सिंगल कस्टमर अनअटेंडेड. वो उसके पीछे लगे रहते हैं. वो छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं उनको, और बहुत उनको टाइम देते हैं अपना. सो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करो और उसके हिसाब से आप उसके पीछे लगो. आपको अगर ऊपर पहुंचना है तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके ही पहुंचोगे, लेकिन उस एक एक सीढ़ी का प्लान तो तैयार कीजिए कि फर्स्ट सीढ़ी मेरी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है. आप फर्स्ट सीढ़ी पर हो तो आपका प्लान 10th सीढ़ी तक का तैयार होना चाहिए. ये नहीं कि अभी ये तो किया, अभी इसका तो रिजल्ट देख लें, हो सकता है इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव आए तो दूसरा आगे क्या. सो व्हाट नेक्स्ट. मैम, आई एम ए वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर, कैन आई सेंड पिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स? यस. अगर आप मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप करेंगे, व्हाई नॉट. इफ योर कंपनी अलाउज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, व्हाई नॉट. You can definitely get it connected to us and then give your products to promote on our website, on our e-commerce portal. But definitely there are certain formalities which you have to complete. But I am very sure and I can assure you that by doing this you will reach to so many customers. You will reach to, I am using the word you will reach to, but selling जो होगी वो सिर्फ कस्टमर की मर्जी से होगी. जहाँ कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो मेक श्योर जब आपका कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ता है तो पूरा ध्यान दीजिए. हाँ जी, कैन आप मेरे से मैसेंजर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9810285135 9810285135 एंड देन आप मेरे से सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी या आपको मैसेंजर पे या जैसे भी आपको सुविधा हो आपको मिल जाएंगी. सो प्लीज़ गेट इन टच विद मी. सो इसी तरह से दैट इज़ नॉट ए वेबसाइट, बेसिकली दैट इज़ ए ई शॉप, दैट इज़ ए मल्टी वेंडर
ई कॉमर्स साइट, जो कि हम जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे, और इट इज़ ऑन द डेवलपमेंट स्टेज, बट आई एम वेरी श्योर एंड इट इज़ बेसिकली फॉर उन लोगों के लिए हैं, उन विमेन के लिए, उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो अपने घरों से भी काम कर रहे हैं, जिनका कोई ऑफिस नहीं है या कोई उनके पास सेटअप नहीं है, लेकिन जैसे कुछ लोग पिकल्स बनाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, या आपके जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यस, इवन सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट you plan your strategy, plan your time. Okay, ma'am, I will note down your number. It is 95600232271. Okay, so I'll get in touch with you, or you can get in touch with me. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। आज आपके साथ एक कस्टमर जुड़ा है, वो नहीं सेटिस्फाइड है, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कीजिए। दूसरा भी नहीं सेटिस्फाइड है और इम्प्रूवमेंट की। देखो, जो नेगेटिव कस्टमरों के वजह से आपको कितना चैलेंज मिल रहा है। आज मैं अपना जो भी वर्जन हूँ वो उन सभी नेगेटिव लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने कदम कदम पर मुझको डिस्करेज किया, क्रिटिसाइज किया। अगर उसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स के साथ होता है, जितने लोग आपके प्रोडक्ट्स को फेलियर का ठप्पा देंगे, उतना प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट आपका ज़्यादा होगा। रिमेंबर दिस, डोंट गेट डिसहार्टन्ड बाय द नेगेटिविटी ऑफ द कस्टमर। दे इन ए वे आर हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट्स। कई बार मैंने देखा है लोग कुरियर्स भेजते हैं और जिसको कुरियर मिलता है वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जो रीसेलर हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने देखो, मैं रीसेलर के लिए एक बहुत बड़ा टिप देना चाहती हूँ। अगर आप रीसेलर हो, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको 100% आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ये मैंने खुद अपनाया हुआ है अपने शॉपिंग बैग के लिए। आप जब भी किसी को प्रोडक्ट सेल करती हो, आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हो, राइट? और वो थर्ड पार्टी आपसे पैसे लेता है, आपसे ऑर्डर लेता है, और वो थर्ड पार्टी आपके कस्टमर को डायरेक्ट वो प्रोडक्ट शिप कर देता है। ठीक है? आप कस्टमर को प्रोडक्ट जो मिला है वो आपने नहीं देखा है, वो सिर्फ वेंडर को पता है उसने क्या भेजा है, या कस्टमर को पता है उसने रिसीव किया है। जिस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट रिसीव किया है, दैट कस्टमर इज अनहैप्पी। या तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, या डैमेज था, या इन्फीरियर क्वालिटी थी, लेकिन वो फ़ोन किसको करेगा? उसको नहीं करेगा, आपके वेंडर को, वो आपको करेगा। आपको बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये इसमें ये, और आपने क्योंकि कस्टमर, आपने उस वेंडर की पिक्चर्स देख के उसको ऑर्डर किया, पैसा दिया, आप उस कस्टमर को ये बोलती हो कि मुझे नहीं मालूम, ये तो उसने भेजा है, मैं चेक करती हूँ। ये ठीक है, मैं चेक करती हूँ, बताती हूँ, उसने भेजा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अगर आपने ये वर्ड यूज़ कर दिए ना, वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए गया। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि उस कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आप पे ट्रस्ट किया, आपकी पिक्चर पे ट्रस्ट किया, वो उस वेंडर को नहीं जानता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है। तो आप मुझसे पूछोगे इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है, आप उस प्रोडक्ट को पहले अपने एड्रेस पे मंगवाइए, उसको पूरी अच्छी तरह से देख के पूरा उसको जज कीजिए कि ये ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के और आपके पैसा जितना दिया उसके मुताबिक है, तो ही उसको आगे बेचिए। आपको थोड़े दिन ज़्यादा लगेंगे और आपका कुरियर ज़्यादा लग जाएगा, वो आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर सकती हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा, आप ऑथेंटिकली उस कस्टमर को बोल पाओगे कि नहीं, मैंने तो ऐसा प्रोडक्ट भेजा नहीं, आई माई सेल्फ हैव सीन। डबल शिपिंग लगेगी नीति, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को कम कर लीजिए या अपना मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वो चुभेगा नहीं। लेकिन आप किसी भी हाँ, अगर आपके बहुत नॉन वेंडर है, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, आपको लगता है उनके यहाँ से नहीं कंप्लेन आती है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर कंप्लेन आएगी, तब भी जिम्मेवारी आपकी ही होगी, आपको प्रोडक्ट तब भी वापस लेना पड़ेगा, तब भी नुकसान होगा, और वो शिपिंग के नुकसान से कहीं ज़्यादा होगा, माइंड इट।
तो मैं हमेशा अपने शॉपिंग बैग में पूरी कोशिश करती हूँ, जो मैं कॉज के लिए भी चलाती हूँ, कि मैं अपने यहाँ एड्रेस पे प्रोडक्ट मंगाती हूँ और थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट उसको रीपैकिंग करके अपने स्टाइल में ब्यूटीफाई करके जब आप बेचते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन रहता है एंड आप ईगर होते हो कि कब उस कस्टमर को मिले और कब मैं उसकी फीडबैक लूँ। नहीं तो हमेशा आपको डर नहीं लगा रहता, अरे मिलेगा, कहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ठीक से गया होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं होगी, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो कभी भी ये आप अपना शुरू में प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकते हो। और शिपिंग, आई थिंक अगर आपकी शिपिंग 60 या 80 रुपीज़ लग रही है, आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन टेंशन भी तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, यू नो। सो थर्ड पार्टी अप्रोच बेटर है या डायरेक्ट अप्रोच? कैन बोथ द अप्रोचेस आर गुड। आप अपने काम को दोनों तरह से सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप कुछ अपने रीसेलर बना सकते हैं। देखो, जब हम खुद ही सारा काम करेंगे तो हम, ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं खुद ही सारा बेच रही हूँ तो मैं एक लिमिट तक ही बेच पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने अपने 5-6 ऑथेंटिक रीसेलर खड़े कर दिए हैं तो मैं ज़्यादा बेच पाऊंगी, इजंट इट? तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने बेचनी है तो यू नीड टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ सेलर ऑल्सो। पहले आप एक काम कीजिए, जैसे आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप अपने नेटवर्क बना लीजिए कुछ लोगों का, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, फिर उन ट्रेनर्स को अपने प्रोडक्ट बेचिए, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे और कस्टमर भी हैप्पी रहेगा। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका अपना नेटवर्क उनकी मेहनत से भी बढ़ेगा। सपोज आपने 10 रीसेलर तैयार किए, हर 10 रीसेलर्स का अपना अपना नेटवर्क ही होगा, एग्री? उन 10 रीसेलर्स के नेटवर्क का बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि सोर्स तो आप ही हो ना, प्रोडक्ट्स तो आपका ही है। तो मैं सोचती हूँ कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। बट उसके अंदर अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप रीसेलर बना रहे हैं वो आपके कितने अग्रेसिव, कितने ऑथेंटिक, कितने सीरियस हैं, उस सिंसियर है उसके अंदर। ये चीज़ आप जरूर कर सकते हो। Anybody has any question, so they can definitely ask me. एंड आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज जरूरी है। नहीं, जो विमेन सूट्स बेचते हैं या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपको उसकी डिटेलिंग जरूर मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो आप कुछ भी बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपनी सर्विसेज की एक्सपर्टीज और अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? कस्टमर के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन सब के आंसर आपको पता होने चाहिए। क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, वो किस तरह से रिकमेंड आप कर रहे हो, इसकी रिकमेंडेशन की क्या हिस्ट्री है, इसका फीडबैक क्या है, कितनी सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, ये सब चीज़ें, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यू नो। इसी तरह जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे अपना क्लोथ या सूट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, उनको सूट के कपड़े की क्वालिटी, उसके ऊपर काम क्या हो रखा है, उसके ऊपर कितने मीटर कपड़ा लगा हुआ है, उसका मतलब हर डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? एक्चुअली आई ऑलरेडी यूज इट, दैट इज वाई आई एम श्योर इन इट। Good, if you have already used it and you are sure, why not? You explore that only. It's very very important. आप जो चीज़ आपने यूज़ की है, आजमाई हुई है, उसी के ऊपर चलिए। एक इंसान, आज अगर मैं खुद सारा काम करूँगी, अगर मैं डेलीगेट नहीं करूँगी अपने वर्क को, तो आई विल क्रिएट ए वेरी स्मॉल नेटवर्क। बट इफ़ आई विल डेलीगेट द वर्क टू अदर पीपल एंड गिव देम द ट्रेनिंग, यू नो, देन it will be more, isn't it? बट ये बहुत सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती है जब हम इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑथेंटिक लोग हमें कई बार नहीं मिलते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपसे जुड़ रहा है वो आपका फेस बनने जा रहा है। सो कितना, क्या वो भी उतना ही अग्रेसिव या आपके प्रोडक्ट के लिए उतना ही वो सिंसियर है जितने आप हो, ये बहुत ज़रूरी है जानना। नहीं तो आपका नाम अच्छा भी हो सकता है और आपका नाम खराब भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो ये मैटर नहीं करता, उसका ये बेबी नहीं है, है ना?
तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि जिसको भी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो वो इंसान भी उतने एग्रेशन से, उतने एथिक्स से, उतनी सिंसियरिटी से और उतने लगन से आपका काम करता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। If you anybody has got any question, I will appreciate if you ask more questions, and so that आपकी किसी की भी प्रॉब्लम जो है वो दूसरे के लिए सल्यूशन हो सकता है. That is why we do these kind of live sessions, because through the live session we get connected to many people, and every people has got their different perspective, and they have different line of questions, and then accordingly when we answer, and that provide a solution also to others. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो आप कर रहे हैं, जितना हो सके काम को अपने हाथ में पकड़ में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपके हाथों से काम निकल गया तो फिर बहुत बहुत दिक्कत भी हो जाती है कई बार, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए. बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच. मैं कहना चाहूँगी जो बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, नीति हैं, कैन हैं, यहाँ पे राधा जी हैं, सुदर्शन जी, टिमसी, ये सब लोग हैं यहाँ पे. इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग, अंजुमन नैयर जी वॉच कर रही हैं, थैंक यू सो मच. रूही, यस, मल्लिका कोहली, ये सब लोग हैं यहाँ पे. और अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, मेक श्योर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन किसी को ना हो जाए. कई बार हम ये करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इतने उतावले, इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी पड़ जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि ये पिक्चर किसी दूसरे की है और हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, क्या किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं हो सकता. कई बार ऐसा भी होता है. ऑनलाइन मार्केटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और वे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को छुपा नहीं सकते और आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख सकते. एनीबडी कैन कॉपी एंड पेस्ट योर पिक्चर्स. सो वो चीज़ें बहुत हैं. बट मैं ये जानती हूँ कि अगर आप अपनी नॉलेज में स्ट्रांग हो, अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी है, तो आई थिंक आपको किसी भी तरह का फियर नहीं होगा. अदरवाइज यस, अगर आप सिर्फ सेल करने के लिए लोगों के प्रोडक्ट्स की पिक्चर डाल रहे हो और सिर्फ आपका मोटिव है कि आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू अर्न मनी, सिर्फ मनी ही आपका मोटिव है, देन यू कैन नॉट गो लॉन्ग वे. बहुत जल्दी आप उस सीढ़ी से नीचे आ जाएंगे. तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें काम, वो एक बहुत ही फेयर तरीके से करें. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, उनके बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके टच में रहिए. हर किसी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए. खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर पिक्चर डालने से या इंटरेक्ट करने से ही नहीं कुछ होता. आपका बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके 1-to-1 इंटरेक्शन से भी होती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. एज पर द नेचर ऑफ योर बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑलवेज मेक श्योर, जब आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और किसी से पर्सनल विंडो पे आप जब कनेक्शन बनाते हैं, तो ऑलवेज टेक ए प्रायर परमिशन. डू नॉट स्पैम अदर्स विंडो और अदर मैसेंजर और अदर एनीबडी. ट्राई टू बी रीजनेबली विद एथिक्स. ये बहुत ज़रूरी है. कई बार लोगों को बुरा लग जाता है. टाइमिंग्स का ध्यान रखें कि आप किस समय किस कस्टमर के साथ बात करना चाह रहे हैं. कई बार हम लोग नहीं याद रखते हैं. आजकल सब लोग लेट नाइट काम करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप लेट नाइट काम कर रहे हो तो बाकी भी, तो हो सकता है दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है. इस चीज़ों का भी ध्यान रखें. यस रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को तो बेचें, उसकी क्वालिटी के बारे में नॉलेज रखें, उसका कस्टमर टारगेट का ध्यान रखें, उसकी ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखें, उसके एथिक्स के साथ जुड़ें. ये सब चीज़ों को तो ध्यान रखें, लेकिन साथ ही साथ आप कस्टमर व्यू पॉइंट को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कस्टमर क्या सोचता है,
कस्टमर का फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज इनटू इवेंट्स, यू नो, व्हेन मैं बहुत इवेंट्स करती थी, आई हैव नेवर पब्लिसाइज फॉर माय इवेंट। मेरे हर इवेंट के पैम्फलेट के ऊपर इवेंट मैनेज बाय ग्रीन्स करके और नंबर सिर्फ दिया होता था, कुछ भी नहीं उसके अंदर लिखा होता था। और जो हमारा इवेंट को पसंद करता था, जो हमारे इवेंट्स में लोग आते थे या जो हमारी पार्टी हमसे ऑर्गेनाइज करवाते थे, बिकॉज आई वाज ए पार्टी प्लानर ऑल्सो, और उस हमारा टारगेट ये होता था कि उस पार्टी को या उस इवेंट को इतने अच्छे से करना है कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। क्योंकि उसमें अगर 200-250 या 500 या 1000 लोग आ रहे हैं, अगर उनमें से 30-50 लोग भी अगर वो मेरे कस्टमर बन जाएंगे तो मेरा मार्केटिंग हो गया, मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस क्राउड में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उस क्राउड के अंदर आपके कस्टमर खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक सिर्फ जरिया है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करोगे तो आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। मैं ये बोलती हूँ कि आप मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करोगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आप लोगों तक पहुंच पाओगे, लेकिन आपके कस्टमर कितने बढ़ेंगे, दैट आई हैव नेवर कमिटेड टिल डेट टू एनीवन। सो मेक इट श्योर दैट यू बी जेन्युइन वाइल सेलिंग योर सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द शी कनेक्ट्स मेंबर एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, जो शी कनेक्ट से हैं या नहीं भी हैं, कि इस नॉलेज को प्रैक्टिकली ज़रूर आजमाएं और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कैसी है, ये भी बहुत ज़रूरी। कई बार हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है, लेकिन जब हम किसी को बेचते हैं वो इतने बुरे तरीके से बेचते हैं कि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपने उसको किस तरह से किसी को कुरियर करके भेजा है, क्योंकि जिसके पास वो कुरियर आ रहा है वो बहुत एक्साइटेड है उस प्रोडक्ट को लेके। वो जब उसको खोलता है तो उसको बहुत एक एप्रीहेंशंस भी होते हैं और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी होता है कि एक सरप्राइज़ निकलेगा इस पैकेट के अंदर से। लेकिन अगर वो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो इवन बाद में चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा निकले, वो उसका मूड ऑफ कर देता है। आई थिंक मेरा तो होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई गेट एनी कुरियर और एनी प्रोडक्ट, इफ इट इज़ नॉट nicely wrapped and nicely presented, I don't like it, so it is very very, ये छोटी सी बात है, it might take a moment to spend that time packaging your product, but it is going to reach to your customer and that customer is going to write a review about your product, so ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू नीति, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी श्योर ये टिप्स अगर आपको हेल्प करेंगे तो आई विल थिंक दैट दिस सेशन इज़ वर्थ, एंड ऑल्सो दोज पीपल हु विल वॉच लेटर ऑल्सो, आई विल टेल देम वंस अगेन एंड अगेन दैट प्लीज़ बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी एथिकल, बी aggressive, and always plan everything in advance, plan in writing, manage your time well, don't waste even a single moment, ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो sky is the limit and आप ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचोगे और अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। And I am still waiting because I told you, if you have any question, surely you can ask me. Hello Deepti, hello Renu ji, thank you so much Renu, your products are amazing and I keep on watching, and all the best to you and all the best to everybody who is watching this live session, and ज़रूर मेहनत कीजिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो आपके कस्टमर का रीच बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ये छोटी छोटी मार्केटिंग टिप्स हैं, हमें आसमान तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने होते हैं, कोई हमें भागना नहीं होता। थैंक यू राधिका जी, योर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, आई लव योर प्रोडक्ट्स and the way you present your product, it is also amazing, and that is one of the tip I was giving to everyone,
that presentation matters a lot, you know. So this is very very important that you present your product in a very very good way. So all the best to all of you, and thank you so much for joining here. Yes, Rashmi, thank you so much, and Neeti, thank you so much. Very informative is said. I hope so. I think आप तो सब जानते हैं, but I will definitely like that बहुत सारे और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको मद्देनज़र रखेंगे। और जो लोग मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं लॉन्च कर रही हूँ, वो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अभी हम एक ऑफ़र मोड के ऊपर हैं। जो भी नए वेंडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो फॉर द सर्विसेज। अगर आप किसी भी सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कैटेगरीज हैं, और बहुत जल्द हम इसको लाइव करेंगे, इसका प्रमोशन और सब कुछ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट की पिक्चर्स देनी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस समय के अंदर जबकि क्राइसिस है चारों तरफ और प्रोडक्ट्स को बेचना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इस दौरान आपको ये ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स पोर्टल, ई शॉप बिल्कुल हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर, और आप देखो, आप जब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट्स डालते हो, आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है और सभी लोग देखते हैं, लेकिन आपके कस्टमर बहुत कम उसमें से होते हैं। लेकिन जब आप हमें इस ई कॉमर्स पे आप डालेंगे प्रोडक्ट्स, तो उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी, जो सारी की सारी मेहनत है, वो सब हम कर रहे हैं। हम ही उसको डाल रहे हैं, हम ही आपको ऑर्डर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम ही उसका लॉजिस्टिक भी देख रहे हैं, हम ही उसका पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो कितना आसान हो जाएगा आपका काम, ये सोच सकते हो। सो जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ गेट इन टच थ्रू शी कनेक्ट प्लेटफॉर्म, ऑन माई मैसेंजर, through my phone call. It is 9810285135. And once again, thank you everyone. थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आपको टिप्स चाहिए, या कोई भी आपको इश्यू आता है अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने से लेके, यू आर फ्री टू गेट इन टच विथ मी। थैंक यू सो मच।